جو پیار کریں گے ہنس ہنس کے پل سے رات کو وہ پار کریں گے۔ اور یا ایھا النبی ذرا کہہ کے دیکھ لے تیری مدد بھی غیب سے سرکار کریں گے۔ اور کسی شاعر نے کیا ہے خوب لکھا ہے، دشمن گھٹانا پائے گا عظمت قرآن کی، دشمن گھٹانا پائے گا عظمت قرآن کی، کرتا ہے حق تعالی حفاظت قرآن کی۔ اور تم کو ملے گی سارے جہاں کی محبتیں، تم کو ملے گی سارے جہاں کی محبتیں، دل میں بسا لو اپنی محبت قرآن کی۔ اے دشمنان دین سنو کان کھول کر، اے دشمنان دین سنو کان کھول کر، ہم عمر بھر کریں گے حمایت قرآن کی۔ اور ہم ہے غلام شاہ رسالت سنو ہمیں، ہم ہے غلام شاہ رسالت سنو ہمیں، ہے زندگی سے زیادہ ضرورت قرآن کی۔ اور قرآن پڑھنے والے کو غدار مت سمجھ، قرآن پڑھنے والے کو غدار مت سمجھ، درس وفا ہے دیتی ہر آیت قرآن کی۔ اور ہے اتنا پیارا کیا کوئی لائے تو ایک مثال، ہے اتنا پیارا کیا کوئی لائے تو ایک مثال، نیزے پہ بھی ہوتی ہے تلاوت قرآن کی، نیزے پہ بھی ہوتی ہے تلاوت قرآن کی۔ ایک بار اور جھم جھم کر درود پاک پڑھے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کی محفل بہت ہی بابرکت محفل ہے، اور اس محفل میں بہت سارے علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ اور پتہ میرے دوستوں، سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس اسٹیج پہ جو ابھی کچھ ہی دن پہلے جن کے سر پہ دستار حفظ کا جو تاج رکھا گیا، دو حافظ اس اسٹیج پہ جلوہ افروز ہے، سبحان اللہ۔ آؤ میں آپ کو تیزی کے ساتھ کچھ باتیں بتاتا چلوں۔ حضرات، آج ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیں، ہم اپنے بچے کو قرآن پڑھائیں۔ آپ کہیں گے مولانا اگر میرا بچہ قرآن پڑھے گا اس میں میرا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر میں اپنے بچے کو حافظ بناؤں یا عالم بناؤں اس میں میرا کیا فائدہ ہوگا؟ تو آؤ میں آپ کو تیزی کے ساتھ بتاتا چلوں۔ اگر کسی کا بچہ قرآن پڑھنا جان جائے، اگر کسی کا بچہ عالم دین ہو جائے، اگر کسی کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے، کتابوں میں آتا ہے جب وہ بچہ قرآن پڑھے گا، بچہ قرآن پڑھتا ہے ثواب ماں کو ملتا ہے، بیٹا قرآن کی تلاوت کرتا ہے ثواب باپ کو ملتا ہے۔ یہی تک کہ محدود نہیں بلکہ جس کا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، بیٹا زمین کے اوپر رہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ ثواب اسے قبر کے اندر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم اور آپ جو ہے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیا کریں، قرآن پڑھایا کریں۔ اس لیے میرے دوستو، قرآن بہت ہی بابرکت کتاب ہے، لیکن آج ہم نے قرآن کو اپنے گھروں میں تاک کے اندر جو ہے سجا کر رکھا ہے، لیکن آج بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں، کہتے ہیں مولانا میرے گھر میں اتنی پریشانیاں آتی ہیں، مولانا ایسے پریشانیاں میں ہم سب گھرے ہوئے ہیں۔ میرا ایمان کہتا ہے جس کے گھر میں قرآن شریف رکھا ہو اور وہ انسان جو ہے کسی بھی پریشانی میں گر جائے، میرا ایمان کہتا ہے، میری محبت پکار پکار کر کہتی ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے لائق میرا ایمان کہتا ہے کہ قرآن کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے گا۔ لیکن پتہ میرے دوستو، آج ہمیں اور آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ہم قرآن پڑھیں، کیونکہ آج طرح طرح کی پریشانیوں میں ہم گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ مولانا وہ مولانا کے پاس جاتے ہیں، تعویذ بنا دو، گنجا بنا دو، یہ بہت سارا طرح طرح کی پریشانی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تعویذ مت بنواؤ، لیکن سب سے زیادہ ضروری کیا ہے کہ ہم اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ قرآن پڑھیں گے اللہ تعالی ہمارے گھر میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرمائے گا، سبحان اللہ۔ قرآن تو ہم پڑھتے نہیں، آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ پتہ میرے دوستو، آج ہم اور آپ اپنے بچے کو جو ہے عالم دین بنائے، حافظ قرآن بنائے۔ آؤ میں آپ کو قرآن
हकीकत बताता चलूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कुफार मुशरिकीन को जो है इस्लाम का कलमा पढ़ाया और कुफार नबी की बारगाह में आकर घुटना टेक दिया करते थे, सर झुका दिया करते थे। आप कहेंगे मौलाना अगर कोई बात हो तो बताओ, कोई वाकया हो तो बताओ। और मैं आपको एक वाकया बताता चलूं। जमाद बिन सालिबा का नाम आपने सुना होगा। पता है जब पैगंबर अलैहिस्सलातो तस्लीम मक्के की गली से गुजरते थे ना, तो मक्के के मुशरिकीन के नौजवान लड़के जितने थे ना, सबके सब नबी को मजनू कहा करते थे, माशाअल्लाह, नबी को जो है पागल कहा करते थे। हजरत जमाद बिन सालिबा कहते हैं कि जब मुस्तफा आगे आगे तशरीफ ले जा रहे थे ना, मैंने बच्चों की बात सुनी, मैंने मक्के के कुफार नौजवान लड़कों की बात सुनी। वो नबी को कह रहे थे मजनू, वो नबी को माशाअल्लाह कह रहे थे पागल। वो जो है कहते मैं नबी के पास गया और बुलाने के बाद कहने लगा, कहने ही वाला था कि ऐसा है मैं जो पागलपन का इलाज जानता हूँ। लेकिन जब जमाद बिन सालिबा नबी के पास गए हैं, जाकर बोलना ही चाह रहे थे, नबी ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, कुरान की तिलावत कर रहे थे नबी, मुस्तफा कुरान पढ़ रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे। जमाद बिन सालिबा कहते हैं कि जब मुस्तफा कुरान पढ़ रहे थे, अभी तक मैं इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ था, लेकिन मुस्तफा जिस तरह कुरान पढ़ रहे थे, कुरान की तिलावत सुनने के बाद मेरे दिल की तारीकियां खत्म हो गई और मुस्तफा के कदम में गिरा और गिरने के बाद कहने लगा कि मुस्तफा आप जिस कुरान को पढ़ रहे हैं वो कुरान कितना अच्छा है। जब कुरान इतना अच्छा है तो आपका किरदार कितना अच्छा होगा। मेरे दोस्तों, और कहने लगे जो कुरान इतना अच्छा है आपका किरदार कितना अच्छा होगा, और जो खुदा आपको कुरान देकर भेजा वो खुदा कितना अच्छा होगा। सुभान अल्लाह। पता है मेरे दोस्तों, तो नबी ने कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो है कुफार को पढ़ाया, तो लोहे और लाठी की तलवार की बदौलत नहीं बल्कि अखलाक की बुनियाद पे, कुरान की तिलावत की बुनियाद पे। पता है मेरे दोस्तों, वो मुस्तफा अगर जिस रास्ते से गुजर जाए ना, तो मुस्तफा का चेहरा देखकर पत्थर कलमा पढ़ने लगे। सुभान अल्लाह। वो मुस्तफा ऐसे नबी है जिस रास्ते से गुजर जाए, दरख्त मुस्तफा की बारगाह में सलातो सलाम का नजराना पेश करे, अल्लाह अकबर कबीरा। वो मुस्तफा अगर पत्थर को हुक्म दे दे तो पत्थर पानी के ऊपर तैरने लगे। वो मुस्तफा अगर उंगली का इशारा कर दे तो आसमान में चांद दो टुकड़े हो जाए, फिर हुक्म मिल जाए तो आपस में जुड़ जाए। वो मुस्तफा अगर डूबे हुए सूरज को हुक्म दे दे वापस आने का तो वापस आ जाए। मेरा ईमान कहता है वही मुस्तफा अगर एक उंगली से जमीन के ऊपर रख के आसमान के चांद को दो टुकड़े कर सकता है। मेरा ईमान कहता है कल हश्र के मैदान में मुस्तफा 10 उंगली उठाकर रब की बारगाह में दुआ कर देंगे, अल्लाह तमाम उम्मत की बख्शिश फरमा देगा। इसलिए हम और आप जो है ना पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम से मोहब्बत करें। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इल्म जो है रोशनी है चिराग की तरह। सुभान अल्लाह। आप कहेंगे मौलाना इल्म रोशनी है चिराग की तरह, आखिर क्या मामला? क्या ये इल्म से मुराद क्या जो है साइंस का इल्म है, या वकील जो कोर्स करता है उसका इल्म है, या कोई और इल्म है? तो मैं आपसे साफ लफ्जों में बताता चलता कि जो नबी ने इरशाद फरमाया वो दुनियावी इल्म नहीं बल्कि शरीयत का इल्म है। सुभान अल्लाह। क्योंकि जहाँ शरीयत का इल्म होगा वही रोशनी ही रोशनी होगी। पता मेरे दोस्तों, आओ तेजी के साथ बताता चलूं कि कल हश्र के मैदान में आपने बारहा सुना होगा कि उलमाए किराम फरमाते हैं कि कल हश्र के मैदान में हाफिजों के सर पे ताज रखा जाएगा और उसके माँ बाप को भी ताज पहनाया जाएगा। सुभान अल्लाह। आओ मैं आपको साफ लफ्जों में बताता चलूं कि कल हश्र का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। ऐसे में जो है अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा, फरिश्तों ऐसा है हाफिज़े किराम के सर पे नूरानी ताज रखा जाए। सुभान अल्लाह। आप फरिश्ते जन्नत से जाएंगे, नूरानी ताज लेकर आएंगे, हाफिज के करीब पहुंचेंगे। हाफिज कहेंगे फरिश्ते ये क्या है? कहेंगे ये ताज है क्योंकि तू जो है कुरान की तिलावत करता था, तूने कुरान के 30 पारे को अपने सीने में सजा कर रखा था। हाफिज
कहेंगे ऐसा है, पहले मेरे सर पे ताज मत रखो, पहले मेरे माँ बाप के सर पे ताज रखा जाए। सुभान अल्लाह। फिर रब की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करेंगे, ये मेरे परवरदिगार, ये हाफिज क्या कह रहे हैं? रब फरमाएगा, फरिश्ते जन्नत में चले जाओ, 2 ताज लेकर आओ जाओ। अब फरिश्ते जन्नत में जाएंगे, 2 ताज लेकर आएंगे। अब जैसे ही पहुंचेंगे हाफिज के माँ बाप के पास, अब वो ताज रखना चाहेंगे, फरिश्ते कहेंगे, जो है हाफिज कहेंगे, ठहर जाइए, रुक जाइए, अभी नहीं। फिर फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, ये मेरे परवरदिगार, अब ये हाफिज क्या कहता है? रब फरमाएगा कि ऐसा है, पूछ लो उनसे। हाफिज कहेंगे, ये मेरे परवरदिगार ऐसा है, फरिश्ते तू रब की बारगाह में अर्ज कर, क्योंकि जब मैं दुनिया से घर में किसी बस्ती में रहता था, किसी गांव में रहता था, जब मेरे माँ बाप ने मुझे मदरसा भेजा था ना, तो गांव के लोगों ने बहकाया था कि देखो वाला जो है अपने बेटे को आलिम दीन बनाने के लिए मदरसा भेज रहा है, हाफिज कुरान बनाने के लिए मदरसा भेज रहा है, ये कितने पैसे कमाएंगे? बहुत ज्यादा कमाएगा, 2, 4, 10 हजार रुपये कमाएगा। अगर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया होता, अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया होता, अपने बच्चे को प्रोफेसर बनाया होता, तो इनका बच्चा जो है अच्छा से अच्छा पैसा कमाता, अच्छी से अच्छी दौलत इकट्ठा करता, अच्छी से अच्छी रकम जो है कमाता, अच्छा से अच्छा घर भी बनाता, इसके पास गाड़ियां भी होती, इसके पास हवेली भी होती, इसके पास बंगला भी होता। लेकिन ये जो है अपने बच्चे को मदरसे में भेजा है, ये चलो पैसे कमाएगा हाफिज बनने के बाद, तो जो है फरिश्ते से कहेंगे, वो हाफिज ऐसा है कि जब मैं जो है मदरसा गया था ना, तो गांव के लोग ताना दिया करते थे, मेरे बाप को जो है बुरा भला कहा करते थे। लेकिन वो हाफिज कहेगा, ये मेरे परवरदिगार, जब मैं मदरसा से वापस लौटता था ना, तो मेरी माँ मुझे अपने सीने से लगाती थी, मेरा बाप मुझे सीने से लगाता था, मेरे भाई जो है सीने से लगाते थे, मेरी बहन जो है सीने से लगाती थी, और कहती थी, भाई परेशान मत हो, गाँव वाले ताना देते हैं तो देने दे, रिश्तेदार ताना देते हैं तो देने दे, भाई परेशान मत होना, मैं तुम्हारे कांधे से कांधे मिलाकर चलूंगा। भाई जिस चीज की तुम्हें जरूरत हो, वो चीज तुम्हें एक ही सवाल पे तुझे जो है दस्तयाब कर दिया जाएगा, मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो हाफिज कहेंगे, ए मेरे परवरदिगार, ऐसा है कि जितने मेरे घर वाले हैं सबके सर पे ताज रख दिया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। किताबों में आता है कि वो हाफिज यहीं तक के बस नहीं, बल्कि हाफिज अर्ज करेगा, ए मेरे परवरदिगार, जब मैं हाफिज बनने के बाद गांव में आया था, जब तक के हाफिज नहीं बना था, गांव के लोग, रिश्तेदार के लोग मुझे बुरा भला कहते थे, लेकिन जिस दिन मेरे सर पे जो है का ताजे जल्दी रखा गया, उसके बाद जब मैं गांव में आया, जब मैं तकलीफ करता था ना, लोग मुझे इज्जत से नवाजते थे, अगर कोई मसला बता देता था, लोग उसे मान लिया करते थे, हर इंसान अदब से पेश आया करते थे। ए मेरे परवरदिगार, ऐसा है उन सबको भी बख्शिश का परवाना दे दिया जाए। किताबों में आता है कि हाफिज को हुक्म होगा, हाफिज रब की बारगाह में बोलना चाहेगा, उससे पहले जो है वो कुरान जिसकी तिलावत से हम कोसों दूर है, वो कुरान जिसके पढ़ने से हम दूर है, वो कुरान रब की बारगाह में दुआ करेंगे। ए मेरे परवरदिगार, ऐसा है, ये वो इंसान है, ये वो लड़का है जो गर्मी था मैं कुरान पढ़ता था, वो जो है ठंडी में मुझे पढ़ता था, रात के गर्मी में मुझे पढ़ता था, रात की तारीकी में मुझे पढ़ता था। ए मेरे परवरदिगार, इस हाफिज की बख्शिश की जमानत मैं लेता हूँ, मैं इसकी सिफारिश करता हूँ। किताबों में आता है कि रब हाफिज को हुक्म देगा कि जन्नत के अंदर चले जा, और जाने के बाद जो है अलहम से वन्नास तक की आयतें कुरान की सूरतें पढ़ता चला जा, जितना पढ़ते पढ़ते रब की जन्नत को तय कर लेगा, अल्लाह तुझे उतनी जन्नत अता फरमा देगा। मेरे दोस्तों, वह हाफिज जो है कुरान की तिलावत करता हुआ जन्नत को जो है तय करता होगा, जितनी जन्नतें तय कर लेगा, अल्लाह उतनी जन्नत जो है हाफिज के नाम कर देगा। सुभान अल्लाह। और उसमें कौन जाएंगे? वही लोग जाएंगे जो हाफिज से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। माँ बाप जाएंगे, रिश्तेदार जाएंगे, खानदान के लोग जाएंगे, और जो उलमा से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसे भी जन्नत का हकदार बना देगा। सुभान अल्लाह।